Good evening, all the participants. We will begin shortly. We're just waiting for Sachin Sir to join, who will be moderating the event today. I welcome all the participants on behalf of INA and our esteemed guest speaker, Ms. Sudha Patil. I request all the participants to kindly remain muted throughout the event and turn their videos off. All questions directed to the speaker today will be taken in the end. सारे सवाल जो आपके होंगे हम चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा या फिर क्वेश्चन आंसर सेशन जो एंड में होगा तब आप अपना हाथ रेस करके मैडम से पूछ सकते हैं. तब तक सुधा मैम आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और माइक टेस्ट कर लीजिए. सुधा मैम आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एंड अपना एक बार कैमरा दिखा दीजिए कि वो सब सही चल रहा है. Prachi madam. हेलो सर, गुड इवनिंग. सुधा मैडम आ रही शायद ना. हाँ जी हाँ जी. मी मैम इज इन द मीटिंग. शी इज जॉइंड. Pardon? हाँ जी, शी इज जॉइंड. She has joined. Yes. Okay. All done. Shall we start? 1 second, sir. Ma'am has just started. Yes, ma'am. Sudha madam, sorry for inconvenience due to some technical issues. No problem, sir. It's okay. No. And sorry to all the participants, because of some technical issues, we are not able to connect in time. Not on time. Yes. Yes. I thank all the participants for their patience today. And I will just start with the Facebook Live. Sachin sir, we can start, I think. Okay. Good evening, everyone.
First of all, I'm extremely sorry on behalf of Indian Nursery Medicine Association because of delayed by 25 minutes because of some technical issues. Today, we have the topic on production of annuals on the 73rd webinar. And to guide us, today we have joined with us Dr. Sudha Patil, Assistant Professor, Department of Floriculture and Landscape Architecture, SP College of Horticulture and Forestry, Navsari, Agriculture University, Navsari. On behalf of Indian Nursery Medicine Association, I welcome her. And I also welcome all the participants who have joined in this today's webinar. Before that, I request Prachi Madam to give a brief introduction of Indian Nurserymen Association and the activities we are doing under the dynamic leadership of our President, Mr. YP Singh Saab. So, over to you, Prachi Madam. Thank you, sir. Good evening, very good evening to all the ladies and gentlemen present today. I am Prachi Kohli and I would like to share with you a very brief introduction about what INA is and what INA does. The Indian Nurserymen began its green journey in 1987, and for the last 33 years, we have been working as a tight-knit community. Our vision is to unite the horticulture community and work towards our goal of making a positive economic, cultural, and social impact. Our founder and first president, late Shri Arjun Das Agarwal ji, was the one who sowed the seeds of INA as we see it today. At INA, we are forever indebted to this visionary man for his untiring efforts. This is our leadership board who have taken Shri Arjun Das Agarwal ji's agenda to new heights. Our current president, Mr. YP Singh ji, who was also the 9th INA president, took charge in 2019, and under a short span of his leadership, we proudly announced that INA is now growing not just nationally but globally. The current leadership board is evident of the fact that INA leaders hail from all over the country, representing unity and diversity of India. Furthermore, we have our iconic green ambassadors from various industries supporting INA in all its endeavors. INA is today India's largest NGO as a member of the National Horticulture Board with an extended network of more than 2 lakh farmers and cultivators. Therefore, INA represents plant breeders, greenhouses, nursery growers, retailers, distributors, educators, researchers, manufacturers, florists, students, and all other stakeholders across the spectrum of the horticulture industry. INA works in a diverse range of thematic areas from PR and advocacy to publications and partnerships, from networking to events, exhibitions, fundraising, and capacity building and study tours. INA worked extensively during the COVID-19 pandemic and with the government industries through video conferencing and put forward the problems faced by the nursery sector during the lockdown. INA was successful in categorizing plant and plant products under the essential items category and providing immediate relief to nurserymen across India. A great news for all our members and subscribers is that INA is now global. I'm very proud to inform you all that the family has now expanded to Japan, Vietnam, Lebanon, South Africa, Netherlands, Italy, Colombia, amongst others. At INA, our staff feature is our Nursery Today magazine, which covers all news and allied updates related to the nursery and allied sectors of the community and features industry experts and talks of influencers. You can now download a soft copy of our monthly magazine from the INA website. Apart from this monthly edition, INA also publishes a directory for horticulture industry every 3 years. INA hosts India's largest international exhibition on ornamental plants, arboriculture, floriculture, greenhouse, landscape, and allied industries called the HortiPro India. INA, in association with the Delhi Tourism and Transportation Development Corporation Limited, organized 33rd Garden Tourism Festival held in March 2021 at Garden of Five Senses, New Delhi. The theme for this year was Green Balcony. INA was an associate partner and was sponsored at this event. Last but not the least, INA also started an initiative called Project Sampradhan, encouraging its wide network of members to contribute towards the PM Care funds in view of the global pandemic.
We have broken records in this department where we have collected more than 51 lakh rupees and donated towards the PM Care funds. With these amazing success stories, I thank you all for your patience. You can now contact us on the given phone numbers and email for any query or discussion, or visit our website for more details. I hope you have a wonderful session today with our esteemed guest speaker, Ms. Sudha Patil. Over to you, Sachin sir. थैंक यू प्राची मैडम। आज के 73rd वेबिनार में प्रोडक्शन ऑफ एनुअल्स टॉपिक पे आज हमारे को मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर सुधा पाटिल मैडम जुड़ी हुई है। शी इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर, एसपी कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नवसारी, गुजरात। She did his BSc in horticulture, MSc in floriculture and landscape, and PhD. She has a wide knowledge of the subject, and she has participated in a lot of national and international level seminars and conferences. More, she has a wide experience in research and teaching. So today we have a very eminent speaker who has a wide knowledge of floriculture, and we are fortunate to have with us with her today. And as we all know that now that these are the days where annuals are growing very nicely, like petunia, and these are all, what we are seeing, salvia and so many things. So in that case, she is there to guide us, and I welcome her on behalf of Indian Nurserymen Association, and I request Dr. Sudha Patil to deliver her lecture on today's topic, production of annuals. So over to you, Sudha madam. Okay, thank you, sir. Hello, am I audible? You're audible, madam. Please share your screen. Okay, thank you, sir. First of all, I would like to thank INA for giving this opportunity, and I'll start my presentation. Just a second. Is the screen visible? No, madam. So there is some technical problem. मैडम आप मुझे अपना दे दीजिए, प्रेजेंटेशन भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं प्ले कर देती हूँ। Okay. Okay, मैम, मैंने भेज दिया है आपको। प्राची मैडम आ गया आपको? सुधा मैडम हाँ जी ready सर, हो रहा है स्टार्टिंग प्लीज। स्टार्टिंग। मैम आप प्लीज अपना प्रेजेंटेशन बंद करिए। मैं देख नहीं, मैं उसमें आ नहीं पा रही।
हाँ जी, एक सेकंड. Okay, now you can share. Yes. अब मुझे नेक्स्ट बोलते जाइएगा मैम, मैं कर दूंगी. Definitely. Okay, hello everyone. So myself, Dr. Sudha Patil. I'm working as an assistant professor in the Department of Floriculture and Landscape Architecture in ASPI College of Horticulture and Forestry. And I'm working as a faculty here in the research as well as in teaching also. Today we will discuss, I can say, I'll provide some information and you can interact with me on the production of annuals. Okay, next ma'am. Okay, so as you know, what is annual? Annual क्या है? हम सब जानते हैं कि annual is a plant which is having their life cycle in a one season or 1 year. एक ही साल में उसको सीड से ग्रो करके फ्लावरिंग और फ्लावरिंग के साथ वो अगेन वापस सीड प्रोड्यूस करके मर जाते हैं. So they are generally considered as a non-woody plants and completed their life cycle mostly in 3 to 6 months depending on the flower. कौन सा crop है उसके ऊपर depend करता है. Okay, and generally हम देखते हैं कि annuals are having very bright colors. They are using worldwide for different purposes and they are very attractive also. Apart from this, they are easily grown और annuals ऐसा है जो गार्डन में और हर सीजन के लिए मोबिलिटी क्रिएट करता है. नेक्स्ट प्लीज. So what is the importance of this? First, for this we need to understand what is the importance of floriculture. Okay, yes. According to APEDA in 2019 and 20, the area and production, the floriculture production area is almost 305,000 hectares with the production of 2,300 and 1,000 tons of loose flowers and along with that 760,000 of cut flowers. ये सिर्फ कट फ्लावर और लूज फ्लावर का डेटा है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन से दैट कि जो फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री है वो प्लांट्स भी एक्सपोर्ट करती है और डिहाइड्रेटेड फ्लावर्स भी एक्सपोर्ट करती है, सेल करती है. So total export of floriculture was estimated in 2020-21 was rupees 575 crores. Okay, so annually floriculture industry is growing up. बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री. और इसमें से अगर हम एनुअल्स की बात करें तो उसमें वी हैव वेरी गुड एनुअल्स लाइक मैरीगोल्ड, क्रिसेंथेमम, चाइना एस्टर, ग्लैडियलस, गैलार्डिया, जो कि कट एज वेल एज लूज फ्लावर में बहुत अच्छे से यूज होते हैं एंड दे आर शेयरिंग देयर बिग अमाउंट. सो because the floriculture is growing due to demand and change in lifestyle of the people. So people are always want different things and they are also purchasing. हम बर्थ से लेके डेथ तक फ्लावर्स का यूज करते हैं. सो इन वन और अदर वे इधर हम फ्लावर्स यूज करते हैं या पॉट्स यूज करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं या तो फिर हम लोग उसको गार्डन में लगाते हैं. सो दिस इज वेरी डिमांडिंग बिजनेस एंड इट इज हैविंग ह्यूज पोटेंशियल. इट इज अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस. अगर हम सीड्स की बात करें एन्युअल्स की तो हम एक पैकेट अगर नॉर्मली भी शॉप में परचेज करने जाते हैं तो वी हैव टू पे 40 to 50 रुपीज फॉर फ्यू सीड्स. ओके, उसमें बहुत कम सीड्स आते हैं एंड सो दे आर वेरी कॉस्टली. एंड इवन व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द हाइब्रिड सीड्स, तो हाइब्रिड सीड्स आर टू मच कॉस्टली. हाइब्रिड सीड्स लोग तब परचेज करते हैं व्हेन दे आर गोइंग फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन. Okay, so this costing is very high and these seeds and seeds of annuals are in high demand in national as well as international market. Next please. Hello, Prachi ma'am. Okay, so there is estimated that the cost of seed production
per hectare varies from 10 to 15,000 और उसका जो net profit आता है वो 25,000 to 75,000 approx आता है. So you can imagine that how much net profit we can gain from only a seed production of annual flower crops. Okay, so at the present जो seed pockets हैं वो ऑलमोस्ट है पंजाब में, हरियाणा, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू वैली, जम्मू एंड कश्मीर एंड वेस्ट बंगाल. There are some particular pockets where the seed production takes place only for annual. Okay, and almost 600 to 700 hectares is under the cultivation. So apart from this, Pune and Bangalore are only growing seedlings, more seedlings. They are selling seedlings and they are producing huge number of seedlings for commercial cultivation as well as for nurserymen as well as for export purpose. आप यहाँ जो फोटोग्राफ्स देख सकते हैं वो फर्स्ट 2 फोटोग्राफ्स है वो पंजाब के फार्मर्स के फील्ड के फोटोग्राफ्स है. उनके लुधियाना के ये लोग पेंसी और कैलेंडुला का सीड प्रोडक्शन करते हैं फॉर एक्सपोर्ट पर्पस. एंड थर्ड जो फोटोग्राफ है वो कर्नाटका का है जहां चाइना एस्टर का सीड प्रोडक्शन लिया गया था फॉर द वैरायटी कामिनी. ये IIHR के थ्रू किया गया एक एक्सपेरिमेंट था. नेक्स्ट प्लीज. तो व्हाट इज द स्कोप? हम एनुअल्स की जब बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज रियली वैल्यूएबल फॉर द कमर्शियल कल्टिवेशंस. लाइक वी कैन से मैरीगोल्ड है, then chrysanthemum, calendula, daisy, gladiolus. These are all used for the cut flower and loose flower for the commercial cultivation. Not even in this, they are also used further for the value-added product. Then apart from commercial cultivation, we can use these annuals or they are having scope in landscape industry. Landscape industry में बहुत सारे तरह से use होते हैं annuals. आप edging में यूज करते हैं, पॉट्स में यूज करते हैं, हैंगिंग बास्केट में, बेड्स में. विल सी दिस लेटर ऑन. देन नर्सरी इंडस्ट्री, ओनली द सीडलिंग्स ग्रोन ऑफ दिस एनुअल्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट इन नर्सरी. ओनली इससे नर्सरी मैन्स को बहुत फायदा होता है. दे आर सेलिंग दिस सीडलिंग्स फॉर गुड प्राइजेस. Okay, so nursery industry is having more scope for production of annual seedlings than seed production industry. This industry is only producing seeds. They are selling seeds. For example, I am giving that Indo-American Hybrid Seed company. ये कंपनी है जो सिर्फ 100% एक्सपोर्ट के लिए सीड प्रोडक्शन करती है. सीड प्रोडक्शन इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए फार्मर्स के यूनिट्स बनाए गए हैं. कोलैबोरेटिव वर्क स्टार्ट किया गया है जिसमें पंजाब, हरियाणा के फार्मर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है. सो दे आर ओनली प्रोड्यूसिंग सीड्स फॉर द either at our national level use or for international level. Another is there is a scope for plant rental business. Plant rental business is a business where the people like corporate sectors, they are usually take the plants on a rent. कोई functions है उस पे भी rent पे plants जाते हैं. So these plants 1 या 2 दिन में आपको plants पहुंचाने होते हैं. On the basis of rent, they can take your plants. उससे ही landscaping बना देते हैं, उसी से decorations कर देते हैं. So one can earn very good from this rental business. Then apart from this, value-added products can be prepared from annuals. Like they can be used for the garlands when we are talking about the loose flowers. Garlands बनते हैं, decorations के item बनते हैं. Then it is also used for dry flowers. Then preparation of essential oils, pigments extraction, different plant parts से different extract किए जाते हैं जो कि medicinal uses होते हैं. फिर natural dyes can be extracted. Then this can be also used for the cosmetic products, and also it is used for the employment generation. Okay, क्योंकि flower seed production में और annual के production में ये सभी industry में, whether it is commercial cultivation, landscape industry, nursery और seed production, whatever it may be, employment generation होता है, बहुत अच्छा होता है. So that's why this is having a good scope, and this is the one way
towards among the all where we can doubling the farmers income, because I already told you कि जब production करते हैं हम seeds का या commercial flowers का, तो हमें बहुत कम inputs लगते हैं, but when we are gaining the profit it is too much. Okay, like I'm saying that when you are purchasing a packet of seed for 40 to 50 rupees, but when you are producing seed, you can harvest this many seeds which are available in a packet from 2 to 3 flowers only. So this is one of the good business, though there is some technical issues, and this is somewhat unorganized industry, we can say, for annuals, but still it is having so much scope. Next, please. So why annuals? As I told you कि हम annuals कहाँ use करते हैं, क्यों use करते हैं? Because जैसे हम landscaping की बात करते हैं, तो we are having some permanent features, okay, like trees हैं, shrubs हैं, but mobility can be created or uniqueness can be created by using annuals. So annuals are having beautiful colors and they can be displayed in many ways. Okay, so that's why we are using annuals. Annuals बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है अकॉर्डिंग टू their shape, size, their adaptability. Some are having fragrance, some are having good colors, some are having good lifespan. So these are very much used in case of landscape, in case of as a pot plant, in case of commercial production. Okay, so they are also easily cultivated on a grounds and pots. ये अच्छे से easy है cultivation में, because of the short lifespan. You can easily change them and it exhibits good show of blooms. जैसे अभी विंटर आ रहा है, तो विंटर में हमें बहुत सारे एन्युअल्स देखने को मिलते हैं. पिटूनियाज है, चाइना एस्टर्स है, एंड क्रिसेंथेमम है. So many flowers we are having during this period. Similarly, we are having different annuals for different seasons. So according to season, according to need, according to purpose, according to the situation, we can grow annuals. Okay, so annuals are having very much uses in case of floriculture industry. Next, please. Next, please, ma'am. Okay, so here I have shown some of the landscape uses in landscaping. Next, please. Yeah, here you can see different arrangements of annuals, whether we can use it in a hanging basket or for bedding purposes, even in rockeries, जहाँ rocks के लिए जैसे कि हम use करते हैं, Sweetalism use कर सकते हैं, Candytuft use कर सकते हैं, Calendula, Gaillardia, these are quite hardy plants we can use. फिर आपने गार्डन में बहुत तरह देखे होंगे कि different kinds of petunias are available, zinnias, dahlias, chrysanthemums. So वो हम along with the path we can use them for the borders also. Then even some tall plants or annual climbers can be also used for screening purpose or trailing purpose. Okay, some annuals are also used to fill the gap. जहां भी गैप है, बड़े बड़े प्लांट्स हैं जैसे कि श्रब्स लगे हुए हैं या एजेस बनी हुई है, सॉरी हेजेस बनी हुई है, वहां जो गैप्स है उनको फिल कर सकते हैं हम मैन्युअल से. सो these are some of the uses that we can do in the landscaping. Next, please. So we can use them according to color scheme. As you know, the colors are different. We can broadly categorize them in a warm color and cool colors. In case of floriculture, we can say that we are having primary, secondary and tertiary colors, and most of all colors are available in annuals. Next, please. तो ये कलर स्कीम जो है वो आप हर तरह से यूज कर सकते हैं. आप सिंगल कलर को यूज कर सकते हैं, लाइक मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, जिसमें आप सेम कलर के प्लांट्स को मास इफेक्ट देने के लिए यूज कर सकते हैं. एनालॉगस कलर स्कीम यूज कर सकते हैं व्हेन यू वांट टू यूज द सेम शेड ऑफ द डिफरेंट शेड ऑफ द सेम कलर. मींस अगर पिंक यूज कर रहे हैं तो लाइट पिंक है, डार्क पिंक है, येलो है तो येलो ग्रीन, ग्रीनिश येलो, ऑरेंज कलर. दिस कैन बी यूज्ड together.
इवन इन कॉन्ट्रास्टिंग कलर स्कीम भी बहुत अच्छी लगती है. मोस्टली व्हेन योर बैकग्राउंड इज ग्रीन देन आल्सो यू कैन यूज रेड, येलो, ब्लू कलर्स इन फ्रंट ऑफ दैट. आप रेड के साथ येलो, येलो के साथ पर्पल, ये कलर्स, वायलेट कलर्स, दिस कैन बी यूज्ड. Okay, so different scheme colors are can be used in landscaping. Even सिर्फ pot के arrangement के लिए भी अगर हम different colors को properly arrange करते हैं तो they look very nice. Okay, next please. ओके, जैसे मैंने कहा कि ये एनुअल बॉर्डर्स में भी यूज होते हैं, तो हम सिंगल फेस बॉर्डर या डबल फेस बॉर्डर में भी इसको यूज कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर हाइट वी कैन अरेंज देम. सिंगल फेस बॉर्डर मतलब जहां से आप खड़े रहेंगे यू कैन व्यू ऑल द बॉर्डर्स. मतलब शुरुआत में हम छोटे ड्वार्फ प्लांट्स रखेंगे, उसके बाद थोड़े मीडियम साइज के, उसके बाद थोड़े हाइटेड प्लांट्स रखेंगे. सो दिस इज सिंगल फेस. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डबल फेस, दैट मीन्स कि टॉलर प्लांट सेंटर में होंगे, उसके बाद मीडियम साइज के प्लांट्स और उसके बाद ड्वार्फ प्लांट्स. सो यू कैन see all the plants from all the sides. Okay, so annuals are those plants which are providing you all these necessary things that you require in landscaping. So we can use very frequently in this annual borders also. Next please. Other uses apart from landscaping, जैसे मैंने आपको बताया कि we can use them in by value adding products, like we can prepare garlands, we can prepare ornaments. Mostly जो functions होते हैं उसमें जो ladies wear करती है वो ornaments हम flowers से बनाते हैं, उसमें mostly seasonal use होते हैं. Okay, because they are also attractive colors, they are light in weight, और बहुत सारे वेरिएशंस आपको मिल जाते हैं. These flowers can also be used for the different decorations, for flower arrangement. You can say loose flower arrangement also, cut flower arrangement also. Then mostly weddings में जो use होते हैं, marigold, chrysanthemum, इनका बहुत ज़्यादा use होता है. Then you can prepare cards or other items from dehydrated flowers. Okay, because these are seasonal, you can get throughout the year flowers for drying purposes. Even you can prepare rangoli. Next please. Then some products which are really important, which is we can't see easily, like we can prepare dye, कलर, नेचुरल कलर डाई, उसमें जो स्पेशली मैरीगोल्ड, कैलेंडुला ऐसे फ्लावर्स से बनता है. देन पॉटपोरी, जो सेंटेड फ्लावर्स हैं उनको ड्राई करके हम अदर फ्लावर्स के साथ और अदर चीजों के साथ मिक्स करके उनको रख देते हैं और उसमें से फ्रेग्रेंस आती रहती है. जो हम नेचुरल मींस रूम फ्रेशनर्स वो यूज करते हैं उसकी जगह ये पॉटपोरीज जो होती हैं, दैट दिस विल गिव द सेम इम्पैक्ट लाइक द रूम फ्रेशनर. Then there are some products like creams, then soaps, baby soaps, ointment, or even pigments, sorry, luteins, like poultry feed. These all products can be prepared from annuals. So हम सिर्फ annuals को landscaping या commercial purpose के लिए नहीं use करते, but it is very useful for other products also. Byproducts are also very costly. Essential oils extract होते हैं, इसके जो other extracts होते हैं वो medicinal use में आते हैं. So annuals are having huge diversification in terms of uses also. Next please. So now we are moving to the classification of the annuals. So according to different things, we can classify them according to season, like winter annuals, summer annuals, and rainy season annuals. Next please. So winter annuals, हम कह सकते हैं कि winter annuals we are growing in, we are sowing seeds for winter annuals in September, October, so they can bloom in February, March. Up to February, March they can flower. Here I have given some examples जो commonly देखने को मिलते हैं और जो useful है, like calendula है, salvia है, asters, chrysanthemum. Next please. मैम move on करते जाइए थोड़ा थोड़ा. Okay, so these are some of the flowers. Statice है, lupins है, ice plants हैं, antirrhinums है, ageratum. So these are
there are so many options in winter annuals. We have so much variations and options, especially in winter annuals, though we have a limited number of annuals in case of summer and rainy season. Okay, Antirrhinum, Gazania, then Dahlia, Gladiolus. Gladiolus is also very popular annual, though it is grown from bulbous plant. Poppy है, आपका pansy है, nasturtium है. Okay, so I have given this list. If anyone wants, they can take the PPT. Here I have given the details. Like then coming to the summer annuals, ये annuals के seeds हम लोग seeds या cutting जो भी हमें डालना है वो हम February March में डालते हैं ताकि ये May June में bloom कर सके. Okay, so especially Kochia is one of the kind of different plant we can say. It is a annual foliage plant. ठीक है, और फिर other plants है. So we can say these plants, Portulaca, sunflower, zinnia, that we can use for different purposes. Next, please. So rainy season annuals के लिए हम seeds को sow करेंगे मई जून में ताकि वो bloom करेंगे जून जुलाई में. Mostly coxcomb, balsam, gaillardia ये सब आपको देखने को मिलते हैं. Rainy season में some of the annuals like star ipomea, they can also be grown. They can also bloom. Okay, so many flowers you can find in case of annuals. Next, please. मैम आप खुद भी कर सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास कंट्रोल है स्क्रीन का. मैम नेक्स्ट कैसे होगा इसमें? ये सिर्फ माउस है तो okay, previous one please. Okay, so according to flower colors also we can categorize this in a white color grouping we can done. White color flowers कौन से हैं, फिर yellow color के कौन से हैं, blue and purple color flowers like sweet pea, verbena, Jaina aster, all this, and then you can say pink और red color के flowers हैं. तो मैम प्रीवियस प्लीज. ये इससे नहीं हो रहा है इस माउस से. मैम आप कर भी रहे हो और कह रहे नहीं भी हो रहा है. ओके, पर मैम वो माउस चला जाता है बार बार. अच्छा मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं. आप मुझे बता दीजिए कौन सी स्क्रीन पे रोकना है. प्रीवियस वन. प्रीवियस. ओके, सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑल्सो जिस तरह की सॉइल अपने पास है हम उस हिसाब से भी एनियल्स को चूज कर सकते हैं. इफ यू आर हैविंग वेरी पुअर सॉइल which is not fertile, then we are having very good annuals. Some very hardy annuals like coxcomb है, gaillardia है, balsam, portulaca, petunia even grow very well in poor soil. और अगर आपके पास alkaline soil है then also you can choose some of the annuals like nasturtium है, zinnia है, balsam है. If you have acidic soil then also you can grow plants like marigold, zinnia, nasturtium and periwinkle. Where your pH of soil is less, it is around 5.5 or lesser than that, then also you can have option. Next please. Okay, according to situation where you want to plant this, then also you can choose annuals. Like for carpet bedding you can choose antirrhinum, candy tuft, ice plant, salvia, sweet alyssum. Well, for aging purpose you can choose pansy, phlox, French marigold and so on. अगर क्लाइंबिंग की बात करें तो मैंने जैसे आपको कहा कि कुछ प्लांट्स है जो ट्रेलिस की तरह यूज होते हैं, स्क्रीनिंग की तरह यूज कर सकते हैं. सो देयर यू कैन यूज स्वीट पी, देन मॉर्निंग ग्लोरी, nasturtium. For rockery also you can use antirrhinum, balsam, helichrysum, ice plants, portulaca and so on. Window sills पे भी plants use होते हैं, for hanging baskets also. Next please.
हैंगिंग बास्केट्स के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है. अकॉर्डिंग टू सीजन यू कैन चेंज योर प्लांट्स आल्सो. Then some of the commercial foliage also available like amaranthus, kochia and nasturtium. Then for shady purpose, जहाँ shade बहुत ज़्यादा है उसके लिए भी annuals are available like close, salvia, viola. They can grow easily in shady situation. Means semi-shady condition you can use these plants for screening purpose also, for pot plants also. You are having so many options in case of annuals. Next please. So for fragrance also, अगर आपको particular fragrance ही चाहिए तो we are having annuals like Sweet William, Sweet Elysium, then Sweet Sultan, Nasturtium. These flowers are you can grow near home or in pots for fragrance. And for dry flower arrangement also you are having some of the plants, some of the annuals like Helichrysum, Acroclinum. They are naturally dried. Status भी बहुत अच्छा है. Even you can use Gypsophila for dry flower arrangement. Some of the plants are naturally dried. ऐसा ही लगता है कि ये dry flower ही है, इनको ज़्यादा कुछ dry करने की ज़रूरत नहीं है. Next please. So coming to the propagations, mainly annuals can be propagated by 3 means. Most of the annuals are propagated through seeds, but some are also propagated through seeds as well as cuttings like marigold, chrysanthemum, and some annuals are propagated through combs or bulbs. Here I have shown you photographs of combs or bulbs, cuttings and seeds. So combs जो generally है वो gladiolus के लिए use होते हैं और Zephyranthus के लिए bulbs use होते हैं for propagation. So by any means you can grow annuals. Okay, next please. Okay, so we'll talk about the nursery raising. नर्सरी रेजिंग हमें उन क्रॉप्स के लिए चाहिए, उन एनियल्स के लिए जहां हम सीड्स यूज करते हैं, ओके, या सीडलिंग्स यूज करते हैं. सो फॉर दिस जनरली वी हैव टू प्रिपेयर वन बेड. जनरली सॉइल का बेड होता है ऑलमोस्ट 10 to 15 सेंटीमीटर की हाइट का और 1 मीटर की विड्थ का, बिकॉज की ऑपरेशंस इजी हो सके दोनों तरफ से. एंड लेंथ शुड बी अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस. You can keep for bed preparation you can use garden soil or red soil, and you can incorporate good decomposed FIM. और उसको अगर डिसइंफेक्ट करना है soil borne diseases के लिए तो आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज you can also use fungicides for like Captain, that you can be drench the soil with this solution. Then जब हम बात करते हैं तो कुछ annuals are producing having bold seeds, some are having very minor seeds like petunia. The seeds are very fine, you can't even handle this. तो जब हमें नर्सरी में उनको spread करना है, so we can't use directly, so we have to add some material, bulk material like sand. हम sand को लेंगे, अगर 1 ग्राम seeds हैं तो 10 ग्राम sand लेंगे, उनको वेल मिक्स करेंगे और फिर उनको ऐसे स्प्रेड करेंगे, लाइंस में डालेंगे. पहले आप बेड में लाइन खींच लेंगे ऑलमोस्ट 0.5 सेंटीमीटर का, और उसके बाद उसमें वो सीड डालेंगे, चाहे बोल्ड हो या स्मॉल सीड हो, उनको स्कैटर करेंगे और उसके बाद उसको फाइन FIM और सॉइल के मिक्सचर से उसको कवर कर देंगे. बिकॉज सीड्स आर वेरी लाइट इन वेट, सो व्हेन यू विल इरिगेट देम दे विल कम अप. So that's why you have to cover them properly. और उसके बाद हम उसको एक इरिगेशन के बाद उसको लाइट कैन रोज कैन से हम वाटरिंग करके उसको ढक देते हैं. किसी भी प्लास्टिक से भी ढक सकते हैं, न्यूज़पेपर से ढक सकते हैं, आपके पास पाम्स के लीव्स हैं उससे भी ढक सकते हैं जो नेचुरल है, या कोई लाइट क्लॉथ है उससे भी ढक सकते हैं. व्हाट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस कवरिंग मटेरियल? बिकॉज कि वहां मॉइस्चर रिटेंशन हो जाए, थोड़ा टेम्परेचर रेज हो जाए तो इट विल हेल्प देम टू जर्मिनेट. ओके, सो सीड विल टेक almost 30 to 35 days, 45 days depending on the crop to prepare or form a seedling with 3 to 4 true leaves. Next please. Okay, so nowadays in case of nursery people, these pro trays are getting more is more popular.
प्रोट्रेज एक ऐसी ट्रे आती है जो डिस्पोजेबल भी हो सकती है, रीयूजेबल भी हो सकती है, वेरी इजी टू हैंडल। तो इसमें क्या कहते हैं कि पहले एक ग्रोविंग मीडिया जो भी लेना है हमें, कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट, वो ले लेते हैं। इसमें जनरली सॉइल यूज नहीं करते हैं बिकॉज मॉइस्चर और कम जो पकड़ने की कैपेसिटी है वो इनमें अच्छी होती है, एरेशन अच्छा रहता है इन मीडिया में। तो दैट्स व्हाई इन प्लग ट्रेज और प्रोट्रेज वी आर यूजिंग लाइट वेट मीडिया। और इसमें भी हम सेंटर में वो मीडिया फिल करने के बाद सेंटर में एक होल बना देते हैं, उसमें एक सीड या एक कटिंग जो भी डालना है हमें डाल देते हैं और फिर उसको वापस कवर कर देते हैं। द सेम वे द मीडिया इज ऑलरेडी मॉइस्चर, सो इरिगेशन तुरंत नहीं देंगे तो भी चलेगा, बट इफ यू वांट यू कैन पुट द लाइट इरिगेशन एंड अगेन कवर देम। अगर सीडलिंग्स है, अरे कटिंग्स है, तो हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे। इन दैट केस यू कैन पुट देम इन अ पॉलीटनल। एक आप पॉलीटनल या नेचुरल टनल जैसा प्लास्टिक से कवर करके रख सकते हैं, जिसमें उसमें उसका मॉइस्चर रिटेंशन रहे, टेम्परेचर थोड़ा रेज हो जाए, तो उसमें रूटिंग इजीली हो सकता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सीड्स, तो उसको भी एज जैसे हमने बेड में कवर करके रखा था, इसको भी कवर करके रखेंगे, तो इसमें भी जल्दी सीड जर्मिनेशन हो जाएगा। सीड जर्मिनेशन होने के साथ ही कवर को निकाल देना है। देन यू कैन डू द irrigation every day. Light irrigation we required, and in this plug tray you can find the ready हो जाते हैं सीडलिंग थोड़ा जल्दी, 30 to 35 days में they are ready. Next please. So some of the benefits of this pro tray is that you can produce paste free quality material, because here there is no chance of soil borne diseases. ओके आप इनको प्रोटेक्टेड कंडीशन में भी रख सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, सो यू कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीजेस आल्सो। इंडिविजुअल सीड या कटिंग को एक अपना इंडिपेंडेंट एरिया मिल जाता है, सो देयर इज no struggle for the survival. They are having their own nutrition, own water, so they can grow properly. सीड जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है प्लग ट्रेज में एज कंपेयर टू सीड बेड। देन दे आर हैविंग बेटर रूट डेवलपमेंट। जब हम बेड से सीडलिंग को निकालते हैं तो वी हैव टू इरिगेट देम डेफिनेटली इन दिस केस आल्सो, बट सीडलिंग को लिफ्ट करने में जो प्रॉब्लम होती है उसमें जहां सीड रूट के ब्रेकिंग होने के चांसेस होते हैं, दिस कैन बी अवॉइडेड इन केस ऑफ दिस, बिकॉज रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, जो पूरा मीडिया होता है उसको वो कवर कर लेता है। Okay, so in this case there is a less chance of seedling mortality also. आप easily वो plug को निकाल के directly field में sow कर सकते हैं। एक disease आता है नर्सरी में damping off करके, वो generally beds में भी ज्यादा आता है, तो ये देखा गया है कि pro trays में ये disease भी कम आती है। Then they are providing uniform and healthy seedlings, maturity भी early हो जाती है, seedlings are ready in lesser time. The handling and transportation is very easy in case of plug tray or pro tray. You can easily take them, आप आराम से उसको कैरी कर सकते हैं। डिफरेंट नंबर्स की प्लग प्रो ट्रेज अवेलेबल है मार्केट में, डिफरेंट साइजेस के, अकॉर्डिंग टू द क्रॉप यू कैन चूज देम। एंड इसका फील्ड एस्टेब्लिशमेंट है और क्रॉप स्टैंड है वो भी बहुत अच्छा रहता है एज कंपेयर टू सीडलिंग्स ग्रोन इन रेज्ड बेड। नेक्स्ट प्लीज। तो सॉइल जो हमने अब सीड ग्रो कर लिए, सीडलिंग्स आर रेडी, नाउ वी आर रेडी टू ट्रांसप्लांट देम टू द फील्ड। ओके, सो कमर्शियल पर्पस के लिए जब हम सीडलिंग्स को या एनियल्स को ग्रो करते हैं तो वी डेफिनेटली नीड अ गुड सैंडी लोम सॉइल एंड इट शुड बी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, बिकॉज द क्रॉप का जो टेन्योर है बहुत छोटा है। हमें उसमें जब हम केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो दे आर नॉट रेडी टू टेक अप इट इजीली, बिकॉज स्लोली सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स होते हैं, दे आर स्लोली मूविंग। तो इसमें अगर सॉइल पहले से ही इनरिच है देन इट इज वेरी गुड। ओके, so you can incorporate good amount of FIM, organic compost like vermicompost, then different poultry manures and all this you can incorporate. So उसके बाद हमें उसका pH भी maintain रखना है 6 to 7.5,
एसिडिक और अल्कलाइन सॉइल्स में सीडलिंग के डैमेज के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बड़े प्लांट्स होते हैं तो वो इजीली ग्रो कर जाते हैं, बट एन्युअल्स आर क्वाइट डेलिकेट। हम उसके जब सीडलिंग्स देखते हैं तो बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं, सो मॉर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं उसमें। तो हम ऑर्गेनिक मैन्यूर्स ऐड करके इसकी पोरोसिटी भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास हेवी ब्लैक सॉइल या ब्लैक सॉइल है तो यू नीड टू इनकॉर्पोरेट मोर मैन्यूर्स। देन हम जब बेड प्रिपरेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम जैसे फील्ड को प्रिपेयर करते हैं, वी नीड टू डू डीप प्लाइंग, देन cultivators can be used, then rotary can be used to pulverize the soil। एकदम फाइन सॉइल कर देते हैं, उसमें हम FIM उसी वक्त ऐड कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन ऐड वर्मी कंपोस्ट, पोल्ट्री मैन्यूर्स। ओके, सो उसके बाद हम जो बेड बनाते हैं वो जनरली 1.2 मीटर की विड्थ वाली और 15 to 20 सेंटीमीटर के हाइट वाली बेड को प्रेफर करते हैं। इफ यू आर हैविंग ड्रिप सिस्टम, 4 लाइन्स आती है जनरली 30 by 30 या जैसा आपका डिस्टेंस है उसके हिसाब से आपको बेड प्रिपेयर करनी है। और अगर आपके पास फ्लड इरिगेशन है, ड्रिप का नहीं है, तो वुड सजेस्ट कि आप 0.6 मीटर या 60 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर की बेड रखें, 90 सेंटीमीटर की बेड रखें, जिससे पानी इजीली सभी प्लांट्स को मिल पाए। नेक्स्ट प्लीज। तो हियर आपके उसके बाद हम ट्रांसप्लांटिंग के लिए जाएंगे, तो 30 to 45 डेज हम पकड़ के चलते हैं कि सीडलिंग रेडी हो जाएंगे ट्रांसप्लांटिंग के लिए। और जब उनको मैच्योर हमें ट्रांसप्लांटिंग करना है तो वी आर होल्डिंग वाटर फॉर 1 or 2 days डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर बहुत हार्श समर है तो इतना ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे, ओके, बट इफ दे कैन हैविंग इनफ मॉइस्चर देन यू कैन होल्ड। तो उनमें क्या है कि वो स्ट्रेंथ आ जाती है, दे कैन सर्वाइव इन द फील्ड, ओके। बट बिफोर अपलिफ्टिंग यू हैव टू इरिगेट देम प्रॉपरली। उससे पहले अच्छे से पानी से उसको मॉइस्ट कर दीजिए, ताकि जब आप सीडलिंग को अपलिफ्ट करेंगे तो रूट डैमेज नहीं होगा, okay। और generally we are suggesting के transplanting should be done in the field during evening hours or late afternoon, you can do this। so overnight the temperature is low, they can easily establish in the field। अब जब transplanting करना है तो planting distance depending on the annuals, किस टाइप के annuals आप ग्रो कर रहे हैं। अगर dwarf annuals हैं जिसकी साइज ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि बिलो 45 सेंटीमीटर है, उनको हम 30 by 30 के डिस्टेंस पे ग्रो करते हैं। 30 सेंटीमीटर विद इन प्लांट, 30 सेंटीमीटर बिटवीन रोज। हियर आई हैव शोन यू अ फोटोग्राफ ऑफ न्यूली प्लांटेड चाइना एस्टर। हमने अभी ट्रांसप्लांट किया था इसको 2 दिन पहले। तो ये इस तरह से आप इसको अच्छे से इरिगेट करके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मीडियम हाइट के जो प्लांट्स होते हैं उनको जो ग्रोथ होती है उसके लिए हम 45 by 45 सेंटीमीटर सजेस्ट करते हैं। एंड टॉल प्लांट्स विच आर हैविंग द हाइट मोर देन 75 सेंटीमीटर, तो हम उनको 45 by 45 जो हाईली डेंस कहते हैं, और या 60 by 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लांटिंग का सजेस्ट करते हैं, ओके। बट दिस इज फॉर कॉमर्शियल पर्पज। अगर आप सिर्फ सीड प्रोडक्शन के लिए जाते हैं तो वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट यू हैव टू मेंटेन आइसोलेशन डिस्टेंस। अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, लाइक एस्टर है, स्वीट पी है, सेल्फ पॉलिनेटेड मीन्स कि जो अपने ही पराग से खुद का फलीकरण करते हैं या फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो उनको हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप कहते हैं। तो उसमें सीड्स आपको जो मिलेंगे वो ट्रू टाइप होंगे, जैसा मदर प्लांट है वैसा ही सीड आपको मिलेगा नेक्स्ट प्लांट। तो वो उसमें कोई आइसोलेशन डिस्टेंस रखने की जरूरत नहीं है। पर दूसरे होते हैं जो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं, तो उसमें क्रॉसिंग अदर प्लांट से होता है, अदर वेराइटीज से। तो अगर आप सीड प्रोडक्शन के लिए जाते हैं तो ये 2 चीजें आपको माइंड में रखनी है कि ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड के लिए एटलीस्ट 100 मीटर का डिस्टेंस रखना है 2 वेराइटीज के बीच में सेम क्रॉप की, और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो ऑलमोस्ट 500 मीटर्स का डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। अदर जनरली हम कहते हैं कि जब सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना होता है तो हम एक प्रोटेक्टेड कंडीशन में या ओपन फील्ड में करते हैं विद ऑल प्रोटेक्शन मेजर्स, ओके। सो सीड प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। नेक्स्ट प्लीज।
तो उसके बाद हम इरिगेशन देते हैं, एक ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद एक फ्लड इरिगेशन दे देते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी ड्रिप इंस्टॉल है तो यू कैन रन योर ड्रिप, अदरवाइज लेटर ऑन अगर ड्रिप से इरिगेशन दिया तो हमारा पानी भी बचेगा और प्लांट्स को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, इनफ मॉइस्चर जमीन के नीचे ही उनको मिल जाता है। तो फॉर समर्स वी आर सेइंग कि 5 to 6 डेज के इंटरवल पे आप इरिगेट करें उनको, और उसके बाद हम उसको विंटर में 10 to 12 डेज के इंटरवल पे इरिगेट कर सकते हैं। फिर हैंड वीडिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज सीडलिंग्स आर वेरी डेलिकेट, तो हम इसमें कोई स्प्रे या कोई वेडिसाइड का स्प्रे या मशीन का यूज हम अलाउड मतलब सजेस्ट नहीं करते हैं। हैंड वीडिंग इज इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट हैंड वीडिंग करने के बाद आप उसको मल्चिंग कर दीजिए, कोई भी ऑर्गेनिक मल्च से। यहाँ भी हम प्लास्टिक मल्च भी यूज कर सकते हैं, बट कि ये सीजनल क्रॉप है, अगर आपको उसी प्लास्टिक पे ये क्रॉप निकाल के फिर दूसरी क्रॉप लगानी है सेम डिस्टेंस पे, तो ही हम प्लास्टिक मल्च यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मल्च इज मोर बेटर बिकॉज वो आप अपने क्रॉप के निकालने के वक्त आप इजीली उसको निकाल सकते हैं और इट कैन डिकम्पोज आल्सो। तो वो आपको वीड को सप्रेस भी रखेगा, मॉइस्चर को भी मेंटेन रखेगा। ओके, फॉर बेटर ग्रोथ यू कैन अप्लाई सम फर्टिलाइजर विथ लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, जो सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स अवेलेबल है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, दैट कैन बी स्प्रेड। और फिर अब एक प्रॉब्लम होती है कुछ एनुअल्स में कि वो जब हाइट ग्रो पकड़ लेते हैं तो दे नीड स्टैकिंग। ओके, सो स्टैकिंग करने से क्या होता है कि प्लांट लॉजिंग नहीं होता है। जब फ्लावरिंग होता है तो प्लांट का वेट बहुत बढ़ जाता है उसके हेड की तरफ। तो जैसे क्रेसेंथीमम है, ग्लैडियोलस है, इनमें स्टैकिंग जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। So for stacking, you can use any bamboo sticks or whatever material is available. One important practices in case of annual is pinching. We have to remove the growing portion. When we are removing this growing portion, so it allows other birds to come up, side shoots niklenge, more number of branches will produce, and hence number of flowers will be more. Mostly we are doing pinching after 30 days of transplanting, and in case of marigold, ageratum, calendula, chrysanthemum, china aster, पिटूनिया, सब में हम जनरली पिंचिंग करते ही हैं एनुअल्स में, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। अगर हम उसको पिंच नहीं करेंगे तो ये एक ही स्टॉक के साथ सीधा सीधा ग्रो होता रहेगा, जैसा आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं। अब पिंचिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट प्लकिंग भी कर सकते हैं और वी कैन यूज सीजर्स आल्सो। और वन मोर थिंग कि हम इनके जो ऊपर का जो पिंचिंग का पोर्शन है दैट कैन वी अगेन यूज फॉर द कटिंग। हम उनको एज अ टिप कटिंग भी ले सकते हैं ताकि उससे हम नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज विन विन सिचुएशन कि आपको नंबर ऑफ फ्लावर्स भी बढ़ जाते हैं इसके, और यू आर हैविंग अगेन डिफरेंट प्लांटिंग मटेरियल आल्सो। नेक्स्ट प्लीज। सो देन कमिंग टू द हार्वेस्टिंग, हमने मैन्योर भी अप्लाई कर दिया, फर्टिलाइजर दे दिया, हार्वेस्टिंग की बारी है। तो when we are talking about commercial flowers like marigold, chrysanthemum, gladiolus, aster, तो इनको हम प्लक करते हैं या तो अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग, डिपेंडिंग ऑन योर क्रॉप आल्सो, योर सीजन आल्सो, आपका ट्रांसपोर्टेशन कितना दूर है, मार्केट कितना दूर है, उस हिसाब से। तो जनरली हम जब लूज फ्लावर के तौर पे हम हार्वेस्ट करते हैं मैरीगोल्ड, क्रिसेंथेमम, इनको तो हम उनको सीधा प्लक कर लेते हैं, हैंड से प्लक करके उनको एक बकेट बास्केट में रख देते हैं, सैक में फिल कर देते हैं। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कट फ्लावर, जैसे क्रिसेंथेमम को हम दोनों तरह से यूज करते हैं, कट में भी और लूज में भी। देन ग्लैडियोलस है जिसको हम कट में यूज करेंगे, चाइना एस्टर है उसको कट और लूज दोनों में यूज करते हैं, जिप्सोफिला को कट में यूज करते हैं। तो जब कट फ्लावर को काटना है तो हम एक शार्प सीजर का यूज करते हैं और उसको वहां से एक कट देते हैं, और फिर वो कट फ्लावर्स को हम पानी वाली बकेट में रख देते हैं। फिर इनको लेटर ऑन पैकिंग करके हम लोग मार्केट भेजते हैं। जब लूज फ्लावर को पैकिंग करते हैं तो या तो उनको बाम्बू बास्केट में पैक करते हैं या तो सैक्स में पैक करते हैं। इंडियन कंडीशन में हम इसी तरह से पैक करते हैं और मार्केट में भेज देते हैं। और जो हम कट फ्लावर की बात करते हैं तो उनको हम कार्डबोर्ड बॉक्सेस में पैक करते हैं।
इसके साथ इनर पैकेजिंग मटेरियल होता है और आउटर पैकेजिंग मटेरियल होता है, और इनको हम जब हार्वेस्ट करते हैं तो लूज फ्लावर को फुल ब्लूम पे हार्वेस्ट करते हैं, मतलब जब फ्लावर पूरा खिला हो, क्योंकि उसमें और कोई फूड अवेलेबल नहीं है कि दैट विल हेल्प देम टू ब्लूम। और कट फ्लावर को हम या तो कलर जब शो करता है लोअर बर्ड, या तो फिर फर्स्ट फ्लोरेट ओपन होता है उसके हिसाब से, अगर हम चाइना एस्टर या क्रिसेंथेमम की बात करें तो कट फ्लावर में उनके बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, मीन्स 5 to 6 मिनिमम फ्लावर्स होते हैं, उसमें से 1 और 2 ही ओपन होते हैं, बाकी के सब बर्ड होते हैं। बट कट फ्लावर में जो है वो फूड रिस्टोर होता है, तो दे आर हैविंग कैपेसिटी, और वो पानी भी अपटेक करते हैं, तो वो खिलते हैं आगे जाके। So in this way, we have to take care regarding the harvesting and their packaging as well as transportation. Next, please. तो हम जब एन्युअल्स को हम एज अ कंटेनर, एज अ पॉट प्लांट यूज करेंगे डिस्प्ले के लिए, तो हमें क्या ध्यान रखना है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो उसमें हम है कि पोटिंग मीडिया डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, हमें लाइट वेट पोटिंग मीडिया यूज करना है जो पोरस भी हो और अच्छे से ग्रो भी हो सके। और हम जो पॉट्स लेते हैं उसकी भी क्वालिटी डिपेंड करती है किस टाइप के पॉट्स हम लोग यूज करना चाहते हैं। ओके, सो पॉटिंग मिक्सचर हम इतना ही ध्यान रखते हैं कि वो एडिक्वेट न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सके, दे आर फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, एंड इट शुड बी लाइट इन वेट, क्योंकि हम पॉटिंग मिक्सचर इज वी आर नॉट ओनली यूजिंग इन पॉट्स बट ऑल्सो इन हैंगिंग बास्केट्स ऑल्सो, ऑन वॉल ऑल्सो, ऑन विंडो सीलिंग्स ऑल्सो। सो it should be of different kinds. Nowadays different kind of potting mixtures are ready, potting mixtures are also available, एंड उसके लिए हम पॉट में फिल करने के लिए हम पहले नीचे कुछ ड्रेनेज, अगर पॉट में ड्रेनेज नहीं है या ड्रेनेज है तो भी प्रॉपर ड्रेनेज के लिए हम उनको थोड़े रॉक्स या ब्रिक्स के टुकड़ों से फिल करेंगे, उसके ऊपर पॉटिंग मीडिया डालेंगे, और फिर आपको जो सीडलिंग है वो रूट अर्थ के बॉल के साथ लेना है, रूट को बिना डैमेज किए, और उसको उसमें रख देना है। देन यू हैव टू अगेन फिल द लेयर ऑफ मीडिया और उसको थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि एयर ना रहे, एंड देन यू कैन इरिगेट देम। नेक्स्ट प्लीज। तो कौन से किस टाइप के कंटेनर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी जगह के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ रखने हैं, किस टाइप के चाहिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेनर्स आर अवेलेबल, प्लास्टिक के मिलते हैं, सिरेमिक के मिलते हैं, देन सीमेंट, अर्दन पॉट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल, इवन वाटर वुडन पॉट्स आर अवेलेबल। तो कंटेनर्स को आप उस हिसाब से लेके चलना है कि आपका यूज क्या है और कितने टाइम तक उसको रखना है। वुडन पॉट्स में एक प्रॉब्लम है कि उसमें टर्माइट्स लग जाते हैं, बट नाउअडेज दे आर ट्रीटेड विद द केमिकल्स। ओके, और प्लास्टिक के पॉट्स हैं कि वो धूप में जल्दी टूट जाते हैं, दैट्स व्हाई we can use terracotta plants having good air movement, but terracotta are quite heavy, so according to your choice you can use different pots. Next please. ओके, सो इसमें जो ध्यान रख, आज न्यू टाइप्स ऑफ पॉट्स आर अवेलेबल वेयर यू दे आर सेल्फ वाटरिंग होते हैं, जहाँ ये आप एक पाइप देख रहे हैं उसमें से वाटर डाला जाता है, एंड ऊपर से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी वो नीचे ही रहता है, वो अपने हिसाब से प्लांट ले लेता है पानी, और आपको पता भी चलता है कि वेदर वाटर इज रिक्वायर्ड और नॉट। सो दिस काइंड ऑफ पॉट्स आर आल्सो अवेलेबल नाउअडेज, दिस आर मोस्टली यूज फॉर होम पर्पस। घर में जब आप डेली पानी नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छे हैं ये पॉट्स, और एन्युअल्स के लिए बहुत ज्यादा प्रेफर्ड होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। So these are different kinds of pots. Nowadays, eco-friendly pots are also available, made up of coco peat, coco coir. Okay, वो pots भी बहुत अच्छे हैं, durable भी है. Then plastic pots also use. Even you can made घर में भी जो चीजें पड़ी होती है, टूटे हुए mugs हैं या फिर plastic bottles है, that can be also used in creative way. So different kinds of pots किसी में भी, because annuals are very small in size, they don't require bigger pots. अगर आपको बल्क प्लांटिंग नहीं करना है, यू आर हैविंग 1 or 2 plants, then also you can grow them
very easily in small containers. Next, please. Okay, and now we'll discuss about the harvesting or seed production. Next, please. So seed harvest करने के लिए we are not going to harvest the plants of flowers, full bloom flowers. We are allow them to dry on the plants. We will wait up to the optimum stage and time of harvesting. Okay, जब तक seed complete ripe नहीं हो जाता है, we can't harvest them. Okay, so harvesting is allowed only when the seed is mature as long as possible on the plant without the seed of fruit blooming becoming diseased or overripe. ठीक है, उसके बाद हम कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि जहां हमें सीड पे इफेक्ट होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो जाता है, सडनली रेन्स आ गई या सडनली वेदर इतना लो हो गया, डिसीज आ गया, पेस्ट आ गया. सो इन दिस कंडीशन we can collect either early or late, or even if we are having any precautions, अगर हम उसको ढक सकते हैं किसी चीज से, then also it is easy to harvest the seeds. And seed जो harvest होते हैं annuals में mostly वो either single seeds means the plant part से होते हैं या whole plant को cut करके उसके seed निकाले जाते हैं. Next please. So here इसमें होते हैं एन्यूल्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती है कि कुछ सीड्स होते हैं जो कैप्सूल के फॉर्म में होते हैं या बर्ड जैसे फॉर्म में होते हैं, वो शटर हो जाते हैं, थोड़े से मूवमेंट से वो शटर हो जाते हैं. तो इन दैट केस वी हैव टू बैग द सीड्स बिफोर देयर मैच्योरिटी सो वी कैन कलेक्ट देम इजीली. प्रॉपर स्टेज पे कलेक्शन से ये होता है कि आपको इमैच्योर सीड भी नहीं मिलेंगे, ओवर मैच्योर सीड भी नहीं मिलेंगे, और सीड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी. आई हैव लिस्टेड सम ऑफ द प्लांट्स along with their stages of collection and photographs that you can see. Like एंटीरिनम को है कि वो हम उसको स्पाइक में हार्वेस्ट करते हैं जब वो पूरी तरह से ड्राई हो जाती है, बट इन केस ऑफ कैलेंडुला हम फुल फ्लावर को ड्राई होने देते हैं और फिर उनको व्हेन पार्शियली ड्राई, और उसके बाद हम उसको कलेक्ट करके ड्राई करते हैं और उसके बाद उसके सीड कलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट प्लीज. So these are I have listed some of the crops which is having different seeds. Small seeds है, bold seeds है, different stages है. किसी में हम head को harvest करते हैं, किसी में pod को harvest करते हैं, किसी में whole plant को ही harvest करते हैं. जैसे सिलोसिया है, इसमें flower के नीचे की तरफ stem पे seeds होते हैं, बहुत छोटे छोटे seeds होते हैं. ये flowers बहुत commonly available है nowadays. It is in full bloom. अगर आप उसके सीड हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू जस्ट कट द पोर्शन और नीचे पेपर या कोई चीज रख दीजिए और उसको सिर्फ रब कर दीजिए, यू विल गेट द सीड्स. ओके, नेक्स्ट प्लीज. सो हियर सम एग्जांपल्स आर गिवन. मैम मूव ऑन करते रहिए सीड्स के लिए. सो दिस काइंड ऑफ सीड्स वी कैन कलेक्ट. ओके, so I have enlisted some of the seeds. Main annuals, पिटूनिया, ये हाइब्रिड्स है, मोस्टली हाइब्रिड सीड्स है, क्रॉस पॉलिनेशन से होता है. तो अगर खुद के यूज के लिए भी अगर आप इसके सीड्स कलेक्ट करते हैं देन यू विल गेट एवरी टाइम डिफरेंट कलर्स. इजीली ग्रोन है सीड्स. मैरीगोल्ड के सीड्स भी आप इजीली ग्रो कर कलेक्ट कर सकते हैं जब फ्लावर हेड ड्राई हो जाता है. ओके, तो जीनिया. उसके बाद सीड प्रोसेसिंग करना पड़ता है. जब आप कमर्शियल सीड प्रोडक्शन के लिए जाते हैं तो यू हैव टू कलेक्ट द सीड्स, ड्राई देम एंड देन क्लीन देम. ड्राइंग हम नेचुरल या हीटेड एयर में ड्राई करते हैं इसको, और क्लीनिंग के लिए हैंड स्क्रीनिंग कर सकते हैं या स्मॉल एयर कॉलम्स का यूज होता है जो उसको सेपरेट करता है. जो इमेच्योर मीन स्मॉल साइज सीड्स है, इमेच्योर सीड्स है या कुछ डर्ट्स हैं, उनको ब्लो कर देता है. उसके बाद सीड्स को ग्रेडिंग करना पड़ता है. बोल्ड सीड्स और अच्छे मैच्योर सीड्स को ही हम अच्छे प्लांटिंग मटेरियल के तौर पे यूज कर सकते हैं. तो ग्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए तो यू हैव टू गो फॉर सीड टेस्ट ऑल्सो. और यहाँ अगर आप पैकिंग करके मार्केट में सेलिंग करना चाहते हैं देन ऑल्सो यू हैव टू गो फॉर द सीड टेस्ट. लाइक आपको उसकी वायबिलिटी टेस्ट करनी पड़ती है, जर्मिनेशन टेस्ट करना पड़ता है, और ये सब होने के बाद ही आप उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं. सीड ट्रीटमेंट्स
कर दीजिए। अगर खुद के लिए करते हैं तो यू नीड नॉट टू गो फॉर सीड टेस्ट। आपको पता ही है कि अगर आपके लिए खुद के लिए अगर कलेक्ट किया है तो यू हैव टू जस्ट ट्रीट देम विद द फंजीसाइड बाविस्टिन में। आप अच्छे से बाविस्टिन के पाउडर से उसको ट्रीट करके आप उसको पैकिंग कर सकते हैं उसको। और अगर कॉमर्शियल के लिए करना है तो आपको लेबलिंग करना जरूरी है। उसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी है और उसके बाद उसको आप लेबल कर सकते हैं। उसमें सीड का नाम, क्रॉप का नाम लिखा होता है, वैरायटी है, उसकी प्योरिटी कितने % है, जर्मिनेशन का % कितना है, डेट ऑफ जर्मिनेशन, टेस्ट, ऑल इंफॉर्मेशन इज नीडेड व्हेन यू आर गोइंग फॉर कॉमर्शियल सीड प्रोडक्शन। बट अगर आप अपने पर्पस के लिए सीड को कलेक्ट करते हैं, सीड को स्टोर करते हैं, देन यू हैव टू जस्ट बैग देम इन एयर टाइट कंटेनर। मतलब आप कोई भी प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन यूज जिपलॉक बैग्स, ओके, जिसमें आप सारा वैक्यूम निकाल दें। एल्यूमिनियम फॉइल पाउचेस आल्सो यू कैन यूज। और उनको आप इजीली रूम टेम्परेचर या सम क्रॉप जैसे एस्टर है उसको आप लो टेम्परेचर पे अपने ही फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। बिकॉज दिस सीड्स आर वेरी स्मॉल, छोटे से वॉल्यूम में बहुत सारे सीड आ जाते हैं, तो आप इजीली उनको स्टोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट। So here nowadays, as I told you, some pockets are growing only seeds. So they are having very good machineries. These are the photographs of Punjab, where they are having these machineries, threshing, cleaning, grading के लिए और testing के लिए। यहाँ जो seed screen हो रहे हैं और फिर उसमें seed viability के testing और seed germination के testing भी किए जाते हैं। नेक्स्ट। तो सीड प्रोडक्शन जब एक्सपोर्ट के लिए होते हैं तो आपको बहुत सारे गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। एंड सम ऑफ द कंपनीज, बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ एनवायरनमेंट इतना सुटेबल नहीं है फॉर ऑल द सीजन। हमारे पास वो बेनिफिट है कि हमारे पास डिफरेंट सीजन्स है डिफरेंट पॉकेट्स में। इवन हम जम्मू कश्मीर में उस वक्त ग्रो कर सकते हैं जब उनका समर है। हमारा समर बहुत हार्श है तो हम उनके यहाँ हम उस वक्त विंटर एनियल्स भी ग्रो कर सकते हैं उनके समर में। तो उसके लिए हमें बहुत अच्छा, मींस फार्मर्स को बहुत अच्छा पे करते हैं फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि उनके यहाँ सीजन बहुत शॉर्ट होते हैं, उनके यहाँ सीड प्रोडक्शन नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई दे आर पेइंग टू अवर फार्मर्स के आप लोग ग्रो करो, सीड सेलिंग करो हमें, बट फॉर दैट वन हैज टू फॉलो ऑल द क्राइटेरिया। ओके, जो भी क्राइटेरिया है, अदरवाइज दे विल कैंसल दैट होल्ड द कंसाइनमेंट। ओके, सो सीड को स्टोरेज करने के लिए भी हम डिफरेंट वे से स्टोर कर सकते हैं ऑन प्लांट। स्टोरेज हमें अलग अलग जगह करना है। जैसे मैंने कहा कि कुछ सीड्स हैं जो बर्स्ट हो जाते हैं, तो उनको प्लांट पे स्टोर करना है बिफोर बर्स्टिंग, तो हमें उनको बैगिंग करना है। हार्वेस्टिंग से लेके प्रोसेसिंग तक भी हमें उसको स्टोर करके रखना है। वेयर हाउस में स्टोरेज में रहता है, फिर ट्रांसपोर्ट में स्टोरेज में रहता है, रिटेल जहाँ लोगों के पास जाता है वहां स्टोरेज रखते हैं, फिर जब हम खरीद के लाते हैं अपने पास भी कुछ दिन रखते हैं। तो इन ऑल द स्टोरेज कि हमें पहले से सीड को उस हिसाब से रखना है, उसकी सब टेस्टिंग उसी हिसाब से करनी है कि ये कितने दिन तक स्टोर में रहेगा और कब तक इसकी वायबिलिटी रहेगी और जर्मिनेशन परसेंटेज मेंटेन रहेगा। सो सीड को स्टोर करना है, डिफरेंट एनियल्स को डिफरेंट कंडीशंस पे स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। कुछ सीड्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए जिनकी स्टोरेज लाइफ शॉर्ट है, लेस देन 1 ईयर। कुछ है जिनको मीडियम, जिनकी लाइफ मीडियम है स्टोरेज की, जिनके सीड्स आप 1 से 3 साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। Some annuals are having good storage life more than 3 years. Okay, तो आप उनके सीड्स को लॉन्ग टर्म्स के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। So depending on the their storage life, I have enlisted some of the plants examples इसमें दिए गए हैं कि किसका लाइफ कितना है। नेक्स्ट। तो इसमें स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशंस लगती हैं कि हमें कितने डिग्री सेल्सियस तक उसको स्टोर करना है। तो मोस्ट ऑफ द एनियल्स जहां मैंने ये लिस्ट आउट किए हैं उनको 25 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टोर कर सकते हैं, मीन्स रूम कंडीशन पे। बस इतना है कि वहां डायरेक्ट मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगना चाहिए।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको मेंटेन करनी है, थोड़ा ड्राई रखना है। जैसे मैंने कहा कि मॉइस्चर डायरेक्ट नहीं लगना चाहिए, ओके। उसको आप डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए 9 मंथ्स 12 मंथ्स के लिए आप स्टोर कर सकते हैं सेम सिचुएशन में। बट सम ऑफ द एन्युअल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना एस्टर एक ऐसा क्रॉप है जिसकी वायबिलिटी बहुत कम है, तो आपको उसको लो टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है हर 6 मंथ्स में। मोस्ट ऑफ द एन्युअल्स उनका लाइफ स्पैन 6 मंथ्स का होता है, और अगर उनका सीजन 6 मंथ्स में आ जाता है तो 6 मंथ्स टू 7 मंथ्स में उनकी लाइफ स्पैन हो जाती है, तो इसके लिए वो वायबल रहते हैं उतना। नेक्स्ट प्लीज। तो देन कमिंग टू पेस्ट एंड डिसीजेस, ज्यादा पेस्ट एंड डिसीजेस आते हैं Ma'am, इसमें। for the paucity of time, I request you to kindly wrap Yeah, up. this is and last slide. हाँ जी ma'am. Okay, so we are having some common pest and diseases like aphids, thrips, mites and leaf miners, जो हम दूसरों में करते हैं कंट्रोल, वैसे ही इसमें भी करते हैं। डिसीजेस में आते हैं इसमें कॉलर रॉट है, स्टेम रॉट है, या डैम्पिंग ऑफ है, पाउडरी मिल्ड्यू, so that can be controlled by using different pesticides and insecticides. Next please. So, okay, I would like to thank you all for patience hearing. So, if there is any questions, we can interact for a while. Thank you, madam, Uh, for a nice presentation. Yes, Prachi, madam. Yes, आपने yes. बहुत ही संक्षिप्त स्वरूप में सभी प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स की सभी चीजें अच्छे से कवर की, राइट फ्रॉम द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनिमल्स एंड growing media and all the stuff. So thank you very much on behalf of Indian Nursery Association. सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, जो सुधा मैडम को कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो दिस फोरम इज ओपन फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। किसी के कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। टाइम काफी हो चुका है, थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन आपके एक या दो सवाल हो तो हम ले सकते हैं। या अदरवाइज तो वी कैन शेयर अ नंबर, आप मुझे बाद में भी व्हाट्सएप पे या ऐसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सुधा मैडम, आप आपका चैट में ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए। सो ओके, यस मैडम, सुधा मैडम ने चैट में उनका फोन नंबर डाल दिया है। जो भी उनसे संपर्क करना चाहता है तो वर्किंग आवर्स में उनसे संपर्क कर सकता है और अपने जो कुछ सवाल है उनसे पूछ सकता है। उनका काफी अच्छा काम है, मैंने नजदीक से देखा है। बहुत ही अच्छा काम उनका फ्लोरिकल्चर में चल रहा है, और इसीलिए उनको आज उन्होंने अब समय निकाल के आज आने के लिए उन्होंने टाइम निकाला। काफी इन लोगों का व्यस्त शेड्यूल रहता है और ये टेक्निकल जानकारी हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन, आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर सुधा मैडम फॉर स्पेयरिंग हर वैल्यूएबल टाइम फॉर इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन। उसी के साथ साथ जो भी हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, उन्होंने आज का ये सब ज्ञान का लाभ लिया, तो सभी का तहे दिल से शुक्रिया आज के इस वेबिनार में जुड़ने के लिए। साथ साथ प्राची मैडम, पिंकी मैडम जो ये वेबिनार के लिए एफर्ट्स ले रहे हैं, उनका भी दिल से धन्यवाद। और वी विल हैव द नेक्स्ट वेबिनार, 74th वेबिनार नेक्स्ट थर्सडे बाय 8 PM। सो तब तक के लिए सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज थोड़ा सा हमको कुछ टेक्निकल रीजन के से वी आर लेट बाय अराउंड 20-25 मिनट्स। सो सभी के लिए क्षमा, आज लेट हुआ। और सी यू देन in the next webinar on next Thursday. Till then, have a nice time to all of you. Thank you very much.